Hello everyone, welcome to Aptly Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic first. Today is 30th of October and the first topic is Pusha Decomposer as a replacement for the stubble burning. The second is Commission for the AI Quality Management. The third is lowest core sector strengthening Singh March. And the fourth topic is appointment of the new CIC, that is Chief Information Commissioner. And the last topic is Center Node project to strengthen the dams. So these are some of the important news and editorial that has been reported in today's newspaper. Apart from all this topic, I'll be discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. So whatever question we have asked yesterday, we'll be discussing that question. We'll be also practicing some question that would be helpful for the prelims upcoming examination, right? So stay tuned till end of this video so that you could practice some important questions. And we are offering a test series program at ISGAM. So this is a package of prelims and mains examination where you can avail 60 tests at the prelims test and 16 for the mains packages, right? And this is at affordable price. If you're comparing from any other institute, you'll get the prices very affordable. So this is very important that you practice both prelims and mains examination to secure success in the civil services CSC 2021 or either we are preparing for 2020, right? So this is something which will help you. So what you can do, you can refer to the description section of this video. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं. Now coming to the first news, that is Pusha Decomposer as a replacement for the stubble burning. So this is a important news. So this will help you in your general studies paper 3 as well as important for the prelims examination. So let's see what are the details from this news. So stubble burning refer to the practice of the farmer where it set fire the plant debris or remain after the harvest. So you can see the example. आप यहाँ पे एक picture देख सकते हैं जहाँ पे एक farmer जो भी बचे हुए रेसिडुअल हैं फार्म डेब्रिस हैं उसको जला रहा है. दिस इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग, राइट? एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. recent stubble burning has created a lot of environmental and air pollution. So before 1980, अगर 1980 से पहले बात करें तो फार्मर यूज टू टिल दिस रिमेनिंग डेब्रिस, जो कि बचे हुए चीज़ हैं, जो मलबे हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें जो वेस्ट है उस क्रॉप की, उनको सॉइल में ही छोड़ देते थे. वो अपने आप हार्वेस्ट होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया करती थी. दिस वॉज द टाइम व्हेन द प्रोडक्शन वॉज नॉट वेरी मच, नो लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं थी 1980 से पहले, थोड़ी मॉडरेट लेवल पे प्रोडक्शन होती थी. नाउ बात करें पूषा डिकम्पोजर की. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द पूषा डिकम्पोजर, देन विल ग्रेजुअली मूव क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्टबल बर्निंग के. सो ये न्यूज़ में है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस. सो स्टबल बर्निंग, अगर बात करें पूषा डिकम्पोजर की, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक इनोवेटिव मेथड लाया है जहाँ पे पूषा जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, दिस इज इन दिल्ली. सो दे हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ टैबलेट्स दैट वुड बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फंगाई स्ट्रेन. सो दीज आर द टैबलेट्स, इट वुड बी समवेयर क्लोज टू दिस लुक, जो कि उस स्टबल में डाल दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज होगी विद द फंगाई स्ट्रेन्स, राइट? सो दिस इज समथिंग जहाँ पे कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होगी और ऑटोमेटिकली जितने भी रेसिडुअल है जो फार्म प्रोड्यूस के एक्स्ट्रा, वो सारे ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएंगे. और इससे क्या मदद मिलेगी, जो बेसिकली जो पूछा के जो डिकम्पोजर्स हैं. So the tablets होंगे, this will help the paddy straws to decompose at much faster rate. The farmer will be given the option to shed the straw, spray the solution with the fungal strain and mix with the soil for decompositions, right? तो ये दोनों options farmer के पास होंगे. वो चाहे तो tablets form में use कर सकते हैं या तो चाहे उसका spray बना के भी use कर सकते हैं. And if this method becomes successful, it would be a new revolution in the farming, क्योंकि जो burning है stubble burning की, उससे छुटकारा मिल सकता है. एंड दिस इज अ ग्रेट रिफॉर्म विच इज कमिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. नाउ इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर बोथ रिडक्शन इन द पॉल्यूशन एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. तो अगर बर्न नहीं किए जाएंगे तो जो एयर पॉल्यूशंस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएगी. एंड एट द सेम टाइम जो डिकम्पोजिशन होगी, जो भी स्टबल है या जो भी रेसिडुअल आइटम्स हैं, वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगी.
नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ऑफ स्टबल बर्निंग, बात करें कब से शुरुआत हुई है स्टबल बर्निंग की. सो दिस ओरिजिन ऑफ स्टबल बर्निंग कैन बी ट्रेस्ड बाय द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. जिस टाइम से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उस टाइम से जब the production was high, so what was the problem was that the farmer want their land holding free, और जो रेसिडुअल थे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, इस वजह से स्टबल बर्निंग उनको करना पड़ता था. सो ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द राइस एंड वीट प्रोडक्शन विच साइमल्टेनियसली इंक्रीज द स्टबल पोस्ट हार्वेस्ट. तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो रेसिडुअल बचते थे, फार्मर को ये भी ज़रूरी थी कि दूसरे क्रॉप भी उनको लगाने हैं, और वो स्टबल वहाँ पे वो अपने खेतों में अपने फार्म में रख नहीं सकते थे. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू बर्न इट, एंड दैट बर्निंग ग्रेजुअली लीड्स टू अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द प्रेजेंट डे. However, the proper combined harvesting technique was not efficacious, और machines जो थे that was 1 foot tall or stocks. Now अभी जो प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग की, दैट इज लो कॉस्ट स्पीडिंग सॉल्यूशन. अगर देखें तो जो पीरियड है 20 to 25 डेज में सारे क्रॉप्स की जितने भी रेसिडुअल बचे हुए हैं उनको बर्न करके हटा दिया जाता है, और सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, दे गॉट सम चीप लेबर कॉस्ट विच इज़ अटैच्ड. उसके बाद सारे जितने भी रेसिडुअल वो बर्न हो जाते हैं, बट इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव है. नाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द स्टबल बर्निंग की अगर बात करें, सो द स्टबल बर्निंग इज प्रैक्टिस प्रिडोमिनेटली बाय द फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया. पंजाब, हरियाणा, ये जो खास करके जो स्टेट्स हैं, डोमिनेटेड स्टेट हैं, उनमें इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है. एंड दिस रिलीजेस द हार्मफुल गैसेस इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसी भी एग्जामिनेशन में स्टबल की जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो इन्वायरमेंट को बेसिकली हार्म करती है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. Now in this year, this practice has increased the vast smoke across the Indo-Gangetic plain. जो हमारी इंडो-गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. उसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट हैं, दिल्ली, उसके जो NCR के रीजन है, NCR इंक्लूड फरीदाबाद, गुड़गांव एंड नोएडा, तो इन सारे एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ी है. एंड these directly expose the pollution to the people to air pollution. क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन है, एक तो होती है इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन, एक तो होती है व्हीकल से एयर पॉल्यूशन, बट दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द पीपल, बिकॉज अगर वो इंसान, अगर फार्मर उस चीज़ को ना जलाए तो पॉल्यूशन वुड नॉट बी देयर, राइट. तो बस ये जो पूसा डिकम्पोजर्स टैबलेट्स बनाए गए हैं, इट विल हेल्प टू डिकम्पोज द फार्म रेसिड्यूज इन ऑर्गेनिक मैटर, राइट. ऑर्गेनिक तरीके से इसको डिकम्पोज करने में मदद मिलेगी. नाउ टेरी की एक रिपोर्ट है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है टेरी, उन्होंने रिपोर्ट दिया था 2019 में, और ये बताया था कि नॉर्दर्न इंडिया में इट वाज 20 टाइम हाईएस्ट देन द सेफ थ्रेशोल्ड लेवल प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉर्थ इंडिया है, खास करके दिल्ली के जो रीजन्स हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो पॉल्यूशन का जो लेवल है, एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है, वो 20 टाइम हायर है जो WHO के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है. And the stubble burning also has a deleterious impact on the soil fertility. It destroys the organic fertilizer and reduce the groundwater level. तो इसकी खामियां आप देख सकते हो, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब करने में है. अगेन इट डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन द सॉइल एंड इट रिड्यूसेस द वाटर लेवल. तो 3 इसके डुअल इम्पैक्ट है नेगेटिव. And stubble burning during the pandemic could also worsen the situation by making lungs weaker. अगर human body में बात करें तो human की lungs get weaker and people are more susceptible to disease. So people would be more prone to disease, and this could also impact people, those who are recovering from the infection. So those people, the community who was recovering from the infection, can have a lot of problem with regards to the air pollutions. Now banned on the stubble burning, अगर ban की बात करें तो in 2013 stubble burning was banned in Punjab. पंजाब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था 2013 में, और 2015 में जो हमारी NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दे हैव इम्पोज्ड द बैन ऑन द स्टबल बर्निंग ऑन द राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, एंड दे हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू असिस्ट द फार्मर बाय इक्विपिंग लाइक हैप्पी सीडर्स एंड रेवेटर्स. और उसके बाद हुआ क्या, स्टबल बर्निंग के जो है उसको
ऑफेंस के अंदर कंसिडर करने लग गया। सरकार ने इसको सेक्शन 188 के अंदर आईपीसी के अंदर एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में इंसर्ट किया कि जो स्टबल बर्निंग है दिस वुड बी काउंटेड एज एन ऑफेंस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टबल बर्निंग, or this will help you to write in the examination. I have covered all the dimension which will help you to write in the examination, right? Now coming to the other topic, that Commission for Air Quality Management. This is again with regards to the air pollution, right? Air quality कैसे measure कर सकते हैं. So this is again important for the General Studies paper 3 and equally important for the prelims examination. So the central government has constituted a permanent body जिसको बोला जाएगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, उसके आसपास के गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे जो रीजन्स हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, अजमेर, नोएडाज, ये सारे जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रीजन्स में इनको कवर किया जाएगा। And the new body would resolve 22-year-old environmental pollutions authority that would be so far addressed as the air pollution in the Delhi's. तो खास करके इंडो गैंजेटिक रीजन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, और दिल्ली एनसीआर के जितने रीजन्स हैं वहाँ पे इसकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इन शहरों में दैट इज़ वेरी लेस, राइट। दिस इज बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI. Now coming to the jurisdiction of the body, so ये जो कमीशन बनी है, जो अथॉरिटी बनी है, उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होगी। सो इट वुड कवर दिल्ली में पूरे दिल्ली के जो एनसीआर के जो रीजन है वो इंक्लूड होगी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राइट। ऑल पावरफुल बॉडी assume the power to coordinate with the same state, और it would levy the charges of fine up to 1 crore rupees and imprisonment of 5 years. 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल के लिए प्रावधान किए गए हैं। Now the Central Pollution Control Board and the state branches, जो इनके स्टेट ब्रांचेस होंगे, सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इम्प्लीमेंट करेगी सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को एयर में, वाटर में और बेसिकली लैंड पॉल्यूशन में, ये तीनों चीज़ों को कंसिडर करेगी। Now in the case of dispute or clashes of the jurisdiction, the commission write the prevail specific matter concerning the air pollution. और अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है किसी अगर एयर पॉल्यूशन के जुरिस्डिक्शन को लेकर के, तो ये सारी जो अथॉरिटी, जो नई बॉडी बनी है, वो इनके पास आएगी और वो डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें करनी है, राइट। स्पेसिफिक पावर जो होगी, जो हायर अथॉरिटी होगी, वो नई बॉडी होगी। नाउ कंपोजिशन ऑफ द पैनल की अगर बात करें, इस पैनल में बेसिकली 6 परमानेंट मेंबर्स होंगे दैट वुड बी हेडेड बाय द फॉर्मर इनकम्बेंट सेक्रेटरी लेवल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो होंगे, या फिर किसी चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो स्टेट गवर्नमेंट में लोग होते हैं, उस पोजीशन के, उस डेजिग्नेशन के लोगों को यहाँ पे मेंबर पैनल में रखा जाएगा। And it will have the member from the ministers as well and representative from the state. तो अलग अलग मिनिस्ट्री से भी रिप्रेजेंटेशन होगी, साथ के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी अपनी रिप्रेजेंटेशन इस नए पैनल में, इस नई अथॉरिटी में भी की जाएगी। नाउ इनिशिएटिव बाय दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने अभी नई एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली, विच वुड बी इन्वॉल्विंग सिटीजन पार्टिसिपेशन टू इंश्योर द टाइमली एक्शन ऑन द गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट द पॉल्यूशन। तो जो गवर्नमेंट की एक्शन है पॉल्यूशन को लेकर के, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। एंड द ऐप विल एनेबल द सिटीजन टू रजिस्टर द कंप्लेन, रिपोर्ट द पॉल्यूशन रिसोर्सेज एंड वायलेशन ऑफ द एंटी पॉल्यूशन नॉर्म्स, राइट। एंड the people of the Delhi are suffering due to the rising pollutions level। अभी बात करें प्रेजेंट में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो AQI है वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और पिछले 5 सालों की अगर बात करें, सो द पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड टू 25% ड्यू टू सेवरल मेजर्स बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द पीपल। So this is gradually improving, but abhi bhi we have to do a lot of work if we want to increase, the quality of the air and improve the air quality in Delhi and the adjacent areas. Now coming to the other topic, that is lowest core sector shrinking since March. So this is with regards to the core sector, and some good news with the sector improving. There's a rise in steel, electricity and coal output. So this is again very important for your general studies paper 3, and the core sector is again very relevant for the prelims examination. So in just अगर बात करें the recent core forecast में, तो 8 core industries that shrank to just 0.8% in September.
अभी भी क्वार्टरली जो अपडेट्स आनी है वो नवंबर में आएगी, नवंबर दिसंबर के आसपास. सो दिस इज अ मंथली अपडेट. और ऑन एन ईयर बेसिस दिस इज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस मार्च 2020, बिकॉज जो फर्स्ट क्वार्टर आई थी उसमें हमने देखा था कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखे गए थे. एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट क्लॉकिंग टू द पॉजिटिव ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च. कोल प्रोडक्शन भी बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है. Now सरप्राइजिंग जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस हैं, जो फर्टिलाइजर्स के जो प्रोडक्शंस हैं, दैट हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली फ्रॉम May to August and marginally contracted in the September to only 0.3%. And while many lead indicators have displayed the signal of strengthening economy in September 2020, so we can have an anticipation that economy is getting improved. मटकले लगा सकते हैं, इस बात की पुष्टि होती है कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रही है. Now sector wise improvement की अगर बात करें, so the coal output has shrunk to September 2019 to 20.9% and it has reported 21.2 growth in September 2020. Now talking about the steel production, it has grew to 0.9% in September compared to 1.4% contraction in the year ago. And electricity output similarly grew by 3.7% via 2.6% decline in the September 2019. And the production of natural gases, that is minus 10%, crude oil, that is 6%, and refinery produce is 9.5%, that continue to fall in September, and these attract the recovery that demand from the followed lockdown imposed in the late March, right? So these are some sector wise improvement that has shown some positive results. Now talking about the core sector, the sharp improvement in the coal sector have been encouraging, जहाँ पे higher consumer spending भी देखी गई है. Now the low base effect in this month is further unlocking and the economy is likely to push the growth into the positive territory in the next month. आने वाले महीनों में और रिकवरी हमें अच्छी दिखेगी और जो Q2 है that would show some positive results. Now the negative growth in the oil segment has further narrowed coming the month, that is unlock process because of the more prevalent in the country. जिस तरह से अनलॉकिंग कंटिन्यूड हुई थी हमारे कंट्री में, स्टिल इट इज कंटिन्यूड. नवंबर में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया. इस वजह से ऑयल सेगमेंट में काफ़ी हद तक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है. Now this is an infographic which will help you understand जितनी भी हमने बातें भी डिस्कस की उसकी एक ग्लिम्स है. For quick revision, so India core sector output has contracted to the 7th consecutive month and there are some positive signals. That 0.8% मैंने आपको बता दिया, coal 21.2%, steel 0.9%, electricity 3.7%, and cement has recorded the narrowest contraction in 7 months. और जून अगस्त estimation जो है -12.4 की है and 17.3 and -50, and earlier it was -8.5, and earlier output has shrunk to 5.1% in September, so the lower base boosting the numbers, right? So this is the core correction in the core sectors. Now coming to the appointment of the new CIC, the Chief Information Commissioner, I have taken this news because the Supreme Court has taken the cognizance and they have recognized that the vacant seat of CIC is not in the favor of the democracy. राइट, तो अपॉइंटमेंट करने की बात की गई थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी. यूजुअली यूपीएससी विल नेवर आस्क यू हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीआईसी, बट इन द अदर एग्जामिनेशन या इसके जो दूसरे डायमेंशन हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 जो इथिक्स के पेपर है केस स्टडी में, वहाँ पे ये मदद हो सकती है. डायरेक्टली प्रीलिम्स में कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे और मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. बट कंसर्निंग द सीआईसी की इंपॉर्टेंट पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में और अभी बहुत ज़्यादा रीसेंट डिबेट में रही है, दैट इज़ वाई वी आर कंसिडरिंग दिस न्यूज़, राइट. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू CIC. So the high-powered selection panel headed by the Prime Minister has appointed Yashwardhana Kumar Sinha, that is YK Sinha, as the new Chief Information Commissioner. And the office of the CIC was left vacant for so many days, like so many months. And Supreme Court has to tell the government that why you are not appointing the CIC, despite the fact RTI, which is a right provided by the Constitution, if CIC would not be there, who would be implementing the RTI?
So Mr. Sinha, talking about the Mr. Sinha, he is a retired IFS officer and he has served as the Indian High Commissioner in UK and Sri Lanka, and he was appointed as a member of Central Information Commission in January 2019. So he already was a member, now he is finally appointed as the Chief Information Commissioner. Now talking something important about the CIC, this segments are important for your civil services prelims examination. prelims में यहाँ से चीज़ें important है क्योंकि आपकी पॉलिटी में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे. So CIC was established in 2005 by the central government under the provision of Right to Information Act, and CIC commissioner heads the Central Information Commissions, and the commission consists of chief and 10 कमिश्नर. तो 10 कमिश्नर्स होते हैं और एक चीफ होती है, तो टोटल 11 लोग होते हैं इसमें. And the Central Information Commissioners, basically it appears that the Central Information Commissioner seekers who are not been satisfied with the public authority also address the major issues concerning the RTI Act. So RTI की जितनी भी चीज़ें हैं that is under the jurisdiction of Chief Information Commissioner. और CIC का काम ये होता है कि वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है यूनियन गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट इट प्रोविजन ऑफ द RTI Act. जो भी सजेशंस होते हैं वो अपने एनुअल रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है. Now power and function of CIC की अगर बात करें तो it is a duty of the commissioner to receive and inquire any complaint that the person has registered with regards to the RTI. और कमीशन ये इंश्योर करती है कि एक ऑर्डर इंक्वायरी की जाए उस मैटर में जहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है सुओ मोटो लेने के. मतलब कोई भी ऐसे केस जो कमीशन को लगती है कि उन्हें खुद से इस पे एक्शन लेने चाहिए, उस तरह के केसेस को सुओ मोटो केसेस कहते हैं. एंड वाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर of the civil court in respect of summoning, requiring and documenting. तो इसके जो पावर है, सिविल कोर्ट की जो पावर दी गई है वो पावर इनके पास है. ये किसी को भी समन कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी चीज़ के मांग डिमांड कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ CIC. दिस वुड अगेन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ टेनोर की बात करें, कई बार यूपीएससी ने अपने स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कितनी टेनोर होती है. तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी उनको दिया जाता है. यूजुअली दे अटेन एट द एज ऑफ 65 के पहले तक ही वो बन सकते हैं. एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट. तो री अपॉइंटमेंट का जो क्लाउजेज है वो CIC में इम्प्लीमेंट नहीं होता है. दिस इज टू इंश्योर, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल CIC को हेड करता है उसके पास बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि वो री अपॉइंटमेंट में एक फेवरेबल हो सकती है उसके लिए, राइट. सो द री अपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड इन द CIC. Now coming to the other topic, that is center not project to strengthen the dam. This is again very important and equally important for your general studies paper 3 environmental को लेकर के, और PT में आपके लिए जो प्रीलिम्स जो प्रोजेक्ट्स हैं डैम्स को लेकर के, सो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी. So the center has recently approved 10,021 crore rupees project for strengthening the dam, and the decision was taken at the meeting of the cabinet committee on the economic affair that was headed by the Prime Minister. And the project aimed to strengthen the 700 dam across the country over the period of 10 years. तो जितने इंडिया में 700 डैम हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर. तो 10 साल में कुछ एक क्लासिफिकेशन की गई है कि पहले 5 साल कहाँ पे काम होगी, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर हाउ दे वुड बी वर्किंग. सो द मास्टर प्लान इज रेडी. सो रैशनल बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, क्या रैशनल है गवर्नमेंट की? तो गवर्नमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ दीज डैम आर ओवर 25 ईयर ओल्ड, राइट. बहुत सारी डैम पुरानी हो गई हैं और उनमें बहुत सारी खामियां भी हैं. सो एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है टू मेंटेन एंड ऑपरेट दिस डैम एट द प्रेजेंट. Now facing basically जो फाइनेंसिंग की अगर बात करें, फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, सो द प्रोजेक्ट इज मोस्टली फंडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज. बाहर से इसके लिए फंडिंग ली जा रही है, और जो मेजर चंक्स हैं वो एक्सटर्नल एजेंसी सच एज वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है AIIB, ठीक है, उसको शॉर्ट में AIIB भी कहते हैं. सो ये इन्वेस्टमेंट करेगी और कंप्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन होगी ऑलमोस्ट 736 एग्जिस्टेंस डैम की इन द कंट्री दैट वुड बी कैरिड आउट अंडर द 2 phases. सो 2 फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा. नाउ टाइम स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट की अगर बात करें, सो द प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर ड्यूरेशन इन द 2 phases. जो पहले 6 ईयर की जो ड्यूरेशन है, फर्स्ट 6 ईयर ड्यूरेशन विथ 2 ईयर ओवरलैपिंग फ्रॉम 2021 to 2031, राइट.
और जो फर्स्ट फेज होगी दैट वुड बी प्रोग्रामिंग स्टार्टेड इन 2012 2000 बेसिकली 223 डैम्स को कवर कर दिए गए हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो और भी जो डैम्स जो ऑलरेडी जहाँ पर रिनोवेशन की काम चल रही है उसकी अगर फंडिंग की कुछ इशू होगी तो वो जो रिसेंट की फंडिंग है उनसे भी इनको एलोकेट किया जाएगा और पूरी तरह से डैम को स्ट्रेंथन किया जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चंस। तो कल के जो सवाल थे उसके जो फर्स्ट आंसर है दैट इज डी, दैट द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू द पीरियड 2 ओवर द Mesolithic period, and the statement 2 is incorrect again, that during the Mesolithic period themes of the multiply painting are similar in size. So if you want to read more, what you can do, you can refer to the NCERT class 11th Introduction to an Indian Art, where you can read more details about Mesolithic paintings. Now coming to the second question, this is the answer here is C. Both statements are correct, that the currency swap reduces the foreign exchange risk. Similarly, it reduces the interest risk also. And the currency swap agreement help in improving the confidence in the market, and it enable a grid the capital market available in India, and it also bring down the cost of capital entities and accessing the foreign capital market, right? So these sources has been taken from the Hindu and PIB, and the correct option here is C. Now coming to the today's MCQs of the day. So the first question is from the polity. Consider the following statement: the president can resign from his office anytime by addressing the resignation letter to the chairman of the Rajya Sabha, and president can hold office beyond the term of 5 years, right? So if you have read a chapter on president on Lakshmikant, this would be a cakewalk for you. You can easily answer the question. So do let me know how many of you know the correct answer, and write your answer in the comment section down below. Now coming to the second question from the geography. Andaman and Nicobar are separated by 8-degree channel. Barren Island is the only active volcano of India that is situated in the Nicobar. So this is with regards to India physical geography. So what you have to do, you have to consider the statement. You have to choose the correct option A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer, use your intelligence guessing and mark the answer, and let us know which among the following answer is correct, right? You can participate and write your answer in the comment section. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.